Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Krishna Krishna Ram Hare Krishna Krishna Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram Hare Krishna Krishna Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Krishna Krishna Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Krishna Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram Hare Krishna Krishna Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna 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 Ram Hare Krishna 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 Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna Krishna Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram Hare Krishna Krishna Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram Hare Krishna Krishna Ram Hare Krishna Krishna Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Ram Hare Krishna Krishna Ram Hare Hare Krishna Krishna
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Ram, Hare Hare Krishna, Hare. There you go. Okay. 798. 800. Ground figure. There you go. Gaur Premanande, Hari Hari Bo. आप तैयार हो? मैं तो तैयार बैठा था। हाँ, लेकिन अगर श्रोता तैयार नहीं है तो वक्ता क्या कर सकता है? श्रोता और वक्ता की जोड़ी होती है। तो आपका अगर साथ है तो आगे बढ़ते हैं। यस, ओके, एकनाथ गौर, यू आर रेडी? हिंदी समझते हो? हिंदी समझते हो? यू अंडरस्टैंड हिंदी? She learn. Okay, so
रामनवमी महोत्सव ही और रामनवमी महोत्सव के अंतर्गत यह कुछ राम का संस्मरण कर ही रहे हैं। और जब राम का संस्मरण हमने कहा या हमको करना होता है तो फिर औरों का भी स्मरण, लक्ष्मण का भी, भरत का भी, शत्रुघ्न का भी और दशरथ का भी स्मरण राम स्मरण ही हुआ। फिर कौशल्या का स्मरण है या कई का स्मरण भी राम स्मरण ही हुआ, और सुमित्रा का भी। और फिर जय हनुमान, तो हनुमान का स्मरण हमें राम का ही स्मरण दिलाता है ना। हनुमान का हो या हनुमान की याद करते ही राम हमारे समक्ष खड़े हो जाते हैं। और ऐसी वैष्णव की पहचान भी होती है या भक्तों की पहचान होती है। भक्त अपने अपने भगवान का स्मरण दिलाते हैं, अपने इष्ट देव का स्मरण दिलाते हैं। उनकी तरफ देखो या उनको सुनो या उनके सानिध्य में जाओ तो लाइक दैट, तो केवल राम का स्मरण करूंगा मैं, हनुमान का स्मरण नहीं करूंगा, ऐसा तो संभव नहीं है। केवल राम का स्मरण करूंगा, दशरथ को भूल जाऊंगा या दशरथ के साथ मेरा कुछ लेना देना नहीं, राम, जय श्री राम, बस ऐसा तो नहीं होता। तो ये थोड़ी कुछ सिद्धांत की बात भी कहो। जब राम कथा होती है तो फिर ये रामायण की कथा होती है, रामायण। तो राम के साथ रामायण, फिर राम लीला का स्मरण, तो राम प्रकट होते हैं, फिर लीला संपन्न होती है। तो लीला तो अकेले में खेली नहीं जा सकती, लीला के लिए सभी चाहिए। फिर लीला के लिए धाम भी चाहिए, फिर धाम की कथा भी, फिर राम कथा। या लीला चाहिए तो वह परिकर भी चाहिए, तो अरे परिकरों की कथा, संस्मरण भी राम कथा। आप समझ ही गए, मुझे और बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो राम कथा का भी कुछ जिक्र हो रहा है, और करेंगे, देखते क्या और कितना जिक्र कर सकते हैं राम कथा। या वैसे कल पद्माली प्रभु कह ही दिए, कुछ संकेत तो किए। एक तो वे कहे कि आज रामानुजाचार्य का आविर्भाव तिथि महोत्सव की। तो रामानुजाचार्य तो राम अनुज या राम अनुग मतलब हुए लक्ष्मण। तो रामानुज लक्ष्मण के अवतार, या शाक्तवेश अवतार। तो फिर लक्ष्मण की भी कुछ कथा या संस्मरण होगा, ऐसा पद्माली कह रहे थे। ओके, लेट्स सी। समय तो बलवान है,
और वो दौड़ता रहता है। तो वह 1004 वर्ष पूर्व रामानुजाचार्य प्रकट हुए। ईस्वी सन 1017 में। हरी हरी। तो anyway, हरे कृष्ण। तो 4 प्रमाणित परंपराएं हैं, ऐसा पद्म पुराण में उल्लेख है। परंपराएं है या संप्रदाय है कहो। संप्रदाय विहीन मंत्रस्ते विफला मता। संप्रदाय के बाहर से आपने मंत्र स्वीकार किया और आप मंत्र रट रहे हो या जो भी कर रहे हो, विफला, फल नहीं प्राप्त होगा। तो मंत्र प्राप्त करना होगा या फिर दीक्षित और फिर शिक्षित भी होना होगा। किनसे? संप्रदाय के आचार्यों से, परंपरा के में आने वाले आचार्य, भक्त, संत, महात्माओं से हमें दीक्षित और शिक्षित होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था है। तो रामानुजाचार्य तो चार परंपराएं या संप्रदाय है, ये भगवान की व्यवस्था है। दिस इज गॉड्स, कृष्णस कहो, अरेंजमेंट है, ऐसी व्यवस्था है। एवं परंपरा प्राप्तम, तो उन्होंने कहा, तो वह परंपरा में ही ज्ञान प्राप्त करना संभव है। तो भगवान ने सारी सुव्यवस्था करके रखी है इस ब्रह्मांड में, ताकि उनका ज्ञान, उनके संबंध का ज्ञान, वेदेश सर्वैर अहम एव वेद्यः, वेद का जो ज्ञान है उसको हम यह संसार के बद्ध जीव उनको सुन के, उस ज्ञान का श्रवण करके, ज्ञान अर्जन करके फिर भगवान को जान सकते हैं। आचार्यवान पुरुषो वेद, दोबारा बात आ गई। जिन्होंने फिर अपनाया है आचार्य को, परंपरा में आने वाले आचार्य को हमने अपनाया है अपने जीवन में, उनसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनसे मार्गदर्शन ग्रहण कर रहे हैं, तो क्या होगा? ऐसा पुरुष वेद, ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान होगा, या जिसको कृष्ण कहे गीता में, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। और ऐसे ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि ज्ञान जब प्राप्त होगा तो माम प्रपद्यते, मेरी शरण में आएगा, कृष्ण कहते हैं, मतलब भगवान के शरण में आएगा। ज्ञानवान भगवान की शरण में आएगा, भगवान को जानेगा। और वासुदेव सर्वमिति, उसका ज्ञान कितना होगा? वासुदेव सर्वम, वासुदेव ही सब कुछ है, वासुदेव ही सब कुछ है, वासुदेव हरि, ऐसा ज्ञान होगा उसका। तो फिर ये भी कहा है, नोट करो, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, अवैष्णवो गुरोर न स्यात्। अवैष्णव मतलब अवैष्णव गुरु न स्यात्, अवैष्णव गुरु नहीं हो सकता।
तो जो वैष्णव नहीं है वो गुरु नहीं हो सकता। तो गुरु को वैष्णव होना चाहिए। अरे तो वैष्णव कौन है? जो विष्णु को, या वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है, जिसने जान लिया। फिर वासुदेव कहो या विष्णु कहो, एक ही बात है। तो जो विष्णु तत्व को जानता है, ये फिर आपके बहुत कुछ आपके पल्ले नहीं फिर पड़ता होगा। फिर बहुत काफी टर्म्स अभी ये कहा, फिर विष्णु तत्व। तो अपेक्षा है कि आप समझते हो कि विष्णु तत्व क्या होता है। विष्णु सही भगवान के अवतार, अवतारों से बनता है विष्णु तत्व, विष्णु। तो एनीवे तो रामानुजाचार्य ऐसे वैष्णव आचार्य रहे। और संप्रदाय को भी तब मान्यता होती है, आचार्य को भी मान्यता तब होती है जब वे वेदांत सूत्र पर उनका प्रामाणिक भाष्य जब लिखा जाता है, तो फिर उस संप्रदाय को मान्यता प्राप्त होती है। तो रामानुजाचार्य वेदांत सूत्र पर अपना भाष्य लिखे, विशिष्ट अद्वैत ऐसा तत्व रहा, विशिष्ट अद्वैत। द्वैत तो मतलब ही द्वैत, मतलब दो, एक भगवान और दूसरे हम, एक जीव और दूसरे भगवान, एक अणु आत्मा, दूसरे विभू आत्मा, दो, टू, नॉट वन। तो जो अद्वैतवादी होते हैं, मायावादी होते हैं, निराकारवादी होते हैं, निर्गुणवादी होते हैं, वे वैष्णव नहीं होते, उनको वैष्णव नहीं कहा जा सकता। तो वैष्णवों के अलावा और भी कई पार्टीज है। एक तो बड़ी पार्टी तो हुआ ये निर्गुण निराकारवादी की, अद्वैतवाद की पार्टी है, जिसका प्रचार शंकराचार्य ने जबरदस्त प्रचार किया। तो उसको परास्त करने हेतु ही भगवान एक एक आचार्य को जन्म देंगे, चार होंगे और फिर पांचवें भी होंगे, माधवेंद्र पुरी। तो उन चार आचार्य जो प्रकट होने वाले हैं, तो उनमें से सर्वप्रथम तो रामानुजाचार्य ही रहे। तो इन्होंने वेदांत सूत्र पर भाष्य लिखा, जो श्री भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण के उपासक या आराधक रामानुजाचार्य, जिनका बहुत बड़ा पीठ कहो, श्रीरंगम है दक्षिण भारत में। तो उसको अपना हेडक्वार्टर बना के रामानुजाचार्य ने वैष्णव धर्म का प्रचार किया, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत का प्रचार किया, और इसी के साथ वे अद्वैत सिद्धांत का, मायावाद को परास्त करते गए। उसी के साथ फिर वे धर्म संस्थापनार्थाय धर्म की स्थापना करते गए। तो इनके कुछ 7,000 ब्रह्मचारी शिष्य थे।
ना ना, आई थिंक 7,000 सन्यासी शिष्य थे और 12,000 ब्रह्मचारी शिष्य थे और कई हजारों और राजा महाराजा या उद्योगपति इत्यादि। तो आप कल्पना कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो कि कितना। और सारे पूरे भारत का उन्होंने भ्रमण किया, क्योंकि शंकराचार्य भी वैसा ही किए थे, सर्वत्र प्रचार करके शंकराचार्य ने अद्वैत सिद्धांत की स्थापना का प्रयास हुआ था। तो अब उसको परास्त करना है, टू डिफीट मायावाद, मायावाद का खंडन करना है, मुंडन करना है। तो रामानुजाचार्य वाज इन एक्शन। तो उन्होंने सफलतापूर्वक वैष्णव धर्म का प्रचार किया, स्थापना की। उनका गीता के ऊपर भी भाष्य लिखे हैं। रामानुजाचार्य का गीता भाष्य प्रसिद्ध है। उसको उसको भी कह सकते थे भगवत गीता एज इट इज। कोई भगवत गीता एज इट इज मतलब भगवान का जो भी इंटेंशन रहा, जो जो कहा उन्होंने, जिस उद्देश्य से भगवान का है, उसको ज्यों के त्यों परंपरा में उसका प्रचार करना या फिर गीता पर भाष्य लिखना परंपरा में। तो वो भगवत गीता फिर यथारूप बन जाती है, एज इट इज बन जाती है। तो उनका भगवत गीता पर भाष्य भी प्रसिद्ध है रामानुजाचार्य का। तो रामानुजाचार्य 120 वर्ष इस धरातल पर रहे। और जब हम कह ही चुके हैं कि वे लक्ष्मण का अवतार और आंशिक अवतार, नॉट फुल फ्लेज्ड। तो वैसे लक्ष्मण भी गुरु है, आदि गुरु है। गुरु तत्व के अंतर्गत यह समझना होगा। लक्ष्मण गुरु की भूमिका निभाते हैं और वैसी भूमिका निभाए फिर बलराम द्वापर युग में, और वैसी भूमिका निभाए नित्यानंद प्रभु कलयुग में। तो कलयुग के, नॉट कलयुग के, ओके ओके कह ही दिया, तो वैसा है कहते हैं। कलयुग में जो गौरांग और नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए, वही तो थे कृष्ण और बलराम, द्वापर युग के कृष्ण बलराम। और वही तो थे त्रेता युग के राम और लक्ष्मण। तो राम है वासुदेव, तो लक्ष्मण है शंकरषण। तो वह आदि गुरु भी है, या लक्ष्मण, बलराम, नित्यानंद। और एक आचार्य की भूमिका भी निभाते हैं। ये सभी लक्ष्मण राम की सेवा करते हैं, ऐसा आदर्श रखते हैं सभी के समक्ष। बलराम भी कृष्ण की सेवा करते हैं, सहायता करते हैं। और वही किया नित्यानंद प्रभु ने भी।
तो जैसे कृष्ण बलराम, उसको पहले कहते हैं कृष्ण बलराम सब समय साथ में रहे। शुरुआत से लेकर अंतर्धान होने के समय तक कृष्ण बलराम अधिकतर समय साथ में ही जैसे रहे। तो वैसा ही देखा जाता है या समझ में आता है कि राम और लक्ष्मण भी सदैव साथ में रहे, साथ में ही जन्मे। उन दोनों का जन्म नवमी का ही है, और जैसे कल भी कह रहे थे, कल ही कहा था, साथ में रहते थे, साथ में खेलते थे, साथ में पालने में, साथ में लेट जाते थे एक ही पालने में। उनकी शिक्षा राजपुत्र के रूप में दोनों की, वैसे चारों की साथ में, उसमें फिर इन दोनों की भी साथ में हुई है शिक्षा। धनुष बाण चलाने की शिक्षा कहो, और भी जो विद्या है राजपुत्रों को प्राप्त करने योग्य, तो वह राम लक्ष्मण साथ में किए हैं। और जब विश्वामित्र आए तो उन्होंने कहा कि आपके 2 पुत्र चाहिए मुझे। कौन से? राम और लक्ष्मण चाहिए। तो राम और लक्ष्मण साथ में गए हैं और साथ में सहायता किए हैं विश्वामित्र मुनि की, और फिर लौटे हैं अयोध्या विवाह के उपरांत। और इन दोनों का ही नहीं, वैसे चारों का विवाह भी साथ में ही हुआ, एक ही विवाह मंडप में विवाह हुआ है राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का। तो राम लक्ष्मण का भी साथ में विवाह हुआ। तो अब विवाहित राम और लक्ष्मण साथ में लौटे हैं अयोध्या, और हरी हरी फिर राम को वनवास जाने का, व्हाट टू डू। दशरथ तो ऐसा आदेश नहीं देना चाहते थे। वैसे दशरथ तो एक समय वो आईने में देख रहे थे, ऐ मेरे बाल पक गए, आई एम ओल्ड मैन नाउ, तो मुझे सेवानिवृत्त होना चाहिए, इट्स टाइम फॉर मी टू रिटायर। तो फिर उन्होंने राम को राजा बनाने का संकल्प किया था। तो वे तो चाहते थे राम बने राजा, किंतु कई कई और ही कुछ चाहती थी। तो जब तो राम तो तैयार हुए, अपने पिताजी ने दिया हुआ वचन, कई कई को दिया वचन को सत्य करने हेतु वे वनवास में जाने के लिए तैयार हुए। ऐसे एक वचनी या सत्य वचनी, वो वचन तो पिताश्री का था। मैं तुमको वरदान दूंगा, मांग लो। अभी फिर लंबी कहानी हो जाएगी। नॉट नाउ। मैं तो वो समय आ गया और फिर सब
तैयारी तो हो रही थी ताकि राजा राम राजा बने, लेकिन वैसे होना नहीं था। तो राम तैयार हुए वनवास के लिए। फिर सीता कैसे रह सकती थी राम के बिना? ओके, यू मे ऑल्सो गो। और फिर लक्ष्मण ने प्रस्ताव रखा है, मैं भी जाऊंगा आपके साथ। बड़ा विशेष संवाद है। इस संवाद को सुनेंगे हम तो वह लक्ष्मण का जो राम के प्रति स्नेह है, प्रेम है, आकर्षण है, या वे भी भक्त है, राम के भक्त है, लक्ष्मण भी है। उसकी पहचान होती है हमको जब लक्ष्मण भी निवेदन कर रहे हैं, मुझे भी ले चलो, मुझे भी, मैं जाऊंगा ही। तो और फिर गए गए ही। वाह। तो गए तो वैसे सहायता के लिए, ऐसा ऐसी भूमिका भी है, ऐसा संबंध भी है, वह सेवक है। अगर हम कहेंगे कि राम सेव्य भगवान है और लक्ष्मण सेवक भगवान है, समझते हो? भगवान राम सेव्य भगवान, जिनकी सेवा होनी चाहिए, करनी चाहिए, और लक्ष्मण सेवक भगवान। जैसे गुरु के संबंध में भी ऐसा ही कहा जाता है। ओके, गुरु भी है भगवान, लेकिन कैसे है? सेवक भगवान। और भगवान तो भगवान है ही। तो वह लक्ष्मण ने खूब किया बस सेवाई की है और कुछ किया ही नहीं, सहायता की है और कुछ किया ही नहीं। फिर पर्णकुटी का निर्माण करना था। जब चित्रकूट पहुंच गए या वैसे केवट ने भी जब कहा था, जिनकी कथा कल हम राधा रमन महाराज से सुन रहे थे, केवट ने पार किया राम लक्ष्मण सीता को। तो हुआ तो उस वक्त केवट ने कहा था, मैं भी वही करता हूं जो राम करते हैं। मेरा व्यवसाय कहो या मेरा कार्य राम जैसा ही है, ऐसा जो केवट कहे। और ये बात जब लक्ष्मण ने सुनी तो, क्या तुम्हारे कार्य की तुलना राम के साथ करते हो? ऐसा कौन सा कार्य है जो राम जैसा तुम्हारा कार्य है? तो वह लक्ष्मण को ऐसी बातें पसंद नहीं हुआ करती थी, वो क्रोधित होते जब। तो उन्होंने तो समझा कि ये तो राम का अपमान कर रहा है, खुद को राम के समकक्ष समझ रहा है। जैसा राम करते वैसा मैं भी कुछ करता हूं। तो वह लक्ष्मण डांट रहे थे, फटकार रहे थे। तो फिर केवट ने कहा था, जैसे मैं लोगों को पार कर देता हूं, गंगा के पार कर देता हूं, मेरी नौका में बिठाकर
गंगा के पार पहुंचाता हूं। और फिर राम भी तो पार लगा देते हैं, सभी का बेड़ा पार कर देते हैं, भव सागर को पार कर देते हैं। या फिर उनके नाम के नौका में ही बैठो, या पत्थर जिस पर नाम नाम राम का नाम लिखा था, तो वो सारा समुद्र पार कर लिए राम की वानर सेना। या राम का नाम ही लो, या राम के लीला का श्रवण करो, या राम के विग्रह का दर्शन करो, तो इसी के साथ ये सारा बेड़ा पार होता है, भवसागर पार होता है। तो इस प्रकार वो समझा रहे थे, समझाया उन्होंने दोनों का कैसे एक ही व्यवसाय है, एक ही ऐसा कार्य है। तो वह तो जब क्या कहा, क्या क्या कह सकते हैं, घड़ी की ओर भी देख रहे हैं। तो चित्रकूट में जब अभी रह रहे थे राम लक्ष्मण सीता, एक दिन दूर से सुनाई दे रहा था, कुछ कोलाहल हो रहा है, कुछ 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 ध्वजाएं दिख रही है, कुछ घोड़ों के टापों की आवाज, खूर की आवाज सुनाई दे रही है, इत्यादि इत्यादि प्रकार के आवाज दूर से सुनाई दे रहे हैं। और ये तो सर्वप्रथम तो लक्ष्मण ने ही सुना था। तो लक्ष्मण वाज लाइक अ बॉडीगार्ड, अंग रक्षक राम और सीता के भी। हम जब रामटेक गए थे, रामटेक नागपुर के पास रामटेक है, रामटेक। टेक मतलब प्रतिज्ञा या संकल्प, जहां पर ये दंडकारण्य में चित्रकूट से भगवान चित्रकूट में रहे, 14 साल के वनवास के कुछ 11 साल 12 साल तो चित्रकूट में रहे। तो वहां से और दक्षिण की ओर प्रस्थान किए, तो रामगिरी भी कहते हैं, रामगिरी भी कहते हैं, पर्वत है, गिरी मतलब पर्वत, रामगिरी या रामटेक भी कहते हैं। उसी पर्वत पर शिखर पर रहे राम लक्ष्मण सीता के समय के लिए। और वही अगस्त्य मुनि का आश्रम भी वही था। और मैंने बहुत कुछ देखा। राक्षसों ने जो आके ऋषि मुनियों का जो हाल किया था, खून पिया था, जान ली थी, उनके हड्डियों के ढेर वहां पड़े थे। तो ये देखकर राम ने संकल्प किया कि पृथ्वी को मैं राक्षसों से मुक्त करूंगा, एक भी नहीं रहेगा राक्षस इस पृथ्वी पर। अपने हाथ में धनुष बाण लिए और प्रत्यंचा चढ़ा के संकल्प लिए। तो इस संकल्प को ही रामटेक कहते हैं, रामटेक। एनीवे, हम तो वहाँ चित्रकूट में थे, तो वहां तो सैन्य आ रहा था। तो लक्ष्मण ने कहा, भैया भैया तैयार हो जाओ, लेट्स गेट रेडी। किस लिए? युद्ध के लिए। किसके साथ?
लक्ष्मण को भी अंदाजा लगाया कि भरत आ रहा है सेना के साथ हमारे साथ लड़ने के लिए, तो हमको भी लड़ना होगा। तो वैसे राम, ओके कूल डाउन, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। भरत और हमारे साथ युद्ध के संभव नहीं है। तो लक्ष्मण का ऐसा कुछ स्वभाव था। लेकिन राम के सेवा के लिए ही उनका स्वभाव या उनके विचार या उनके सारे कार्यकलाप हुआ करते थे। तो उन्हें सोचा कि शायद राम को हानि पहुंचाने के लिए राम ये भरत आ रहा है। ऐसा थोड़ा विचार, हल्के विचार के साथ ही, हल्के से विचार के साथ उन्होंने सोचा उनको लड़ना होगा। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो हुआ वैसे 14 साल लक्ष्मण न तो खाए न तो सोए, वनवासी जैसा तो रहे ही। जैसे राम भी केवल वनवास में ही नहीं रहे, वनवासी जैसा रहे। वन में जैसे वास करते हैं वैसे कहा जाता कि हम देख के भी आए हैं। जब चित्रकूट पहुंचे भगवान, तो देवताओं ने एक विशेष गुफा की व्यवस्था की जहां राम रह सकते हैं आराम के साथ। तो गुफा में तो एसी भी चलती है, चलती तो नहीं लेकिन कुदरती ठंडा भी होता है। और तो हम देख के आए हैं। तो लेकिन कोर्स राम ने वो प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और लक्ष्मण ने मंदाकिनी नदी के तट पर, चित्रकूट में मंदाकिनी नदी है, पवित्र नदी है, जिसके तट पर राम लक्ष्मण सीता रहे, 10-12 साल रहे वहां। तो हरी हरी। तो वहां से मैंने रामटेक आए। तो anyway, जहाँ भी तो वनवासी जैसा ही रहे, पर्णकुटी में ही रहते थे। और राम और लक्ष्मण और सीता और वस्त्र या वल्कल ही पहनते थे वनवासी जैसे। कंद मूल फल ही खाते थे। पका हुआ कुक्ड फूड उन्होंने नहीं खाया। 14 साल पकवान बना के पका के भोजन नहीं किया राम ने। और लक्ष्मण ने तो कुछ भी नहीं खाया। जब राम लक्ष्मण सीता पहुंच गए, पंपा सरोवर के तट पर पहुंचे, तो शबरी प्रतीक्षा कर रही थी। और शबरी ने कुछ विशेष बेर, उसका उसका वैशिष्ट्य ये था कि स्वयं थोड़ा चख के और उन उन बेरों का चयन करके, मतलब अगर मीठा है तो फिर उसको रखी थी, राम को खिलाऊंगी मैं। तो राम की प्रतीक्षा हर रोज किया करती थी, आज आएंगे, आज नहीं तो
शाम तक आ ही जाएंगे, नहीं आ जाए तो कल तो आना ही है उनको, इस प्रकार का उनकी उत्कंठा। तो वह तो जब राम को खिला रही थी वो बेर, तो राम को भी दे रही थी, राम तो खा रहे थे। और फिर राम ने कहा, मैंने क्या क्या नहीं खाया जीवन भर में, कई प्रकार के अन्न और पकवान पहले अयोध्या में खाता रहा, और फल, कंदमूल फल का भी आस्वादन किया है, लेकिन ऐसा ऐसा आस्वादन, ऐसी मिठास का मैंने और कभी अनुभव नहीं किया था। तो वह आस्वादन वैसे किसके कारण? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या, भक्ति का आस्वादन था। वो फल को नहीं चख रहे थे, इस शबरी के भक्ति का आस्वादन, रसास्वादन था वह। anyway, तो राम तो खा रहे थे, राम ने खाए फल, तो वह शबरी लक्ष्मण को भी दे रही थी फल, क्योंकि राम तुम खाओ, राम खाते थे। और लक्ष्मण को जब वो देती थी तो लक्ष्मण क्या करते थे, जब शबरी उनकी ओर देख नहीं रही है तब उसको जड़ से फेंक देते थे। He was just throwing them. तो उन्होंने खाया नहीं, पिया नहीं, सोया नहीं, 14 साल ऐसी तपस्या की, सभी कठिनाइयों का सामना, चुनौती करते हुए राम की सेवा करते रहे लक्ष्मण। क्या राइट कुछ तो जब पंचवटी में थे तो आ गए, रावण महाशय आ गए, और उसी समय कल जिनका हमने स्मरण किया था, मरीचि को लेके आए। तो वह, लेकिन वो हिरन बन के मरीचि वहां पहुंचा था, तो सीता चाहती थी, तो राम पीछा करने गए या उसको पकड़ने गए, तो सीता पर्णकुटी में ही रही, और लक्ष्मण को कहा था कि यही रहो, रक्षा करो सीता की। एनीवे, ये सब लीला कथा है। तो लक्ष्मण तो बहुत समय को उपरांत ऐसा, ऐसी पुकार जब सुनी दोनों ने, सीता और लक्ष्मण ने, तो सीता प्रेरित कर रही थी लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए जाने के लिए, किंतु लक्ष्मण जानते थे नहीं नहीं नहीं, ये कुछ, ये मरीच की चालाकी हो सकती है, होनी चाहिए, राम का वैसे कोई बिगाड़ नहीं सकता। तो वो नहीं जाना चाहते थे, किंतु सीता तो जोर दे रही थी, नहीं जाना ही, कहो। यहाँ तक कि फिर वो सीता ने ये भी कह बैठी, मैं समझती हूँ, आई नो, क्यों तुम नहीं जाना चाहते हो। ऐसे समय
की प्रतीक्षा में ही तुम थे। एक दिन राम नहीं रहेंगे तो फिर मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी बन जाऊंगी। कहना भी थोड़ा कठिन है, लेकिन ऐसे कुछ विचार सीता के मन में आए या कही ऐसा, तो फिर सहा और रहा नहीं गया लक्ष्मण से भी, और लक्ष्मण गए। तो एक बात और भी ऐसी कुछ बातें रही। जब ऑल राइट, तो 14 साल के वनवास के उपरांत वे सभी लौटे, राम लक्ष्मण सीता लौटी। लेकिन फिर वो धोबी क्या कह रहा था राम के संबंध में, उसका भी राम ही सुने अपने कानों से। ऐसी अफवाहें फैल रही थी। तो राम ने निर्णय लिया सीता को वन में भेजने का, और वो अकेली जाएगी, और गर्भवती भी थी सीता उस समय। और फिर लक्ष्मण को आदेश हुआ, लक्ष्मण तुम रथ में बिठा के ले जाओ वन में, और कहीं छोड़ देना इसको, इसके साथ नहीं रह सकता मैं। जो वह रावण के साथ ये रही है मैं, तो फिर ये बहुत बहुत बड़ा धर्म संकट था लक्ष्मण के लिए। सीता को वन में पहुंचाने का, सीता को पुनः वनवासी बनाने का। तो जैसे वहां पंचवटी में लक्ष्मण नहीं जाना चाहते थे सीता को अकेली छोड़ के, लेकिन जाना पड़ा। वो राम अनुज जो थे, या राम अनुग जो थे, छोटे थे। राम बड़े, लक्ष्मण छोटे। तो यहाँ पर भी अब राम का ये आदेश, सीता को वनवास, वन में छोड़ के आओ। तो इस समय भी लक्ष्मण नहीं चाहते थे, इस आदेश का पालन नहीं करना चाहते थे। ये सही नहीं है, सीता निष्पाप है, ये है वो है, किंतु वैसा उनको करना ही पड़ा। तो फिर ऐसे और भी कई अनुभव होंगे या है। तो लक्ष्मण ने फिर ऐसा भी संकल्प किया कि नेक्स्ट टाइम जब मैं प्रकट होऊंगा, तो मैं छोटा भाई नहीं बनूंगा, मैं बड़ा भाई बनूंगा। तो त्रेता युग के राम लक्ष्मण अवतार के उपरांत जब कलयुग, द्वापर ना त्रेता युग के बाद में जब द्वापर युग आया, द्वापर युग के अंत में ऐसे अब प्रकट होना था कृष्ण और बलराम को, तो बलराम बड़े भाई बने हैं। जो जो लक्ष्मण, त्रेता युग के लक्ष्मण अब बलराम बड़े भाई बने हैं, और राम त्रेता युग के अब द्वापर युग में छोटे बने हैं, कृष्ण। तो तो कृष्ण को भी कहा जाता है रामानुज। कृष्ण का एक नाम है रामानुज।
लेकिन यहाँ राम कौन से? बलराम, बलरामानुज। बलराम बड़े और अनुज उनके बाद में जो जन्मे वे बलराम, वे कृष्ण। राम का एक नाम है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। राम का भी एक नाम है रामानुज। तो त्रेता युग के रामानुज है लक्ष्मण। ओके, क्लियर। और द्वापर युग के रामानुज है बलराम, कृष्णा, सॉरी, कृष्णा। हरी हरी। Okay, so राम लक्ष्मण सीता की जय, कृष्ण बलराम की जय, गौर निताय की जय। श्रीपाद रामानुजाचार्य आविर्भाव तिथि महोत्सव की जय, रामनवमी की जय। और आज वैसे just take 1 minute maybe। राम गोविंद स्वामी महाराज का भी आज जन्म दिवस है। आप परिचित होंगे। हमने उनको सन्यास दिया था, हमारे और सन्यासी डिसाइपल है, मेरे सन्यासी डिसाइपल है राम गोविंद स्वामी महाराज। तो उनको रामनवमी के दिन ही मायापुर में, रामनवमी के दिन कई वर्ष पूर्व उनको हमने सन्यास दीक्षा दी। और फिर राम नाम भी दिया। पहले गोविंद तो था उनके नाम में, लेकिन हमने राम जोड़ दिया तो राम गोविंद है। रामनवमी का दिन था, सन्यास दीक्षा हो रही थी, नाम में थोड़ा हल्का सा बड़ा सा भी परिवर्तन किया जाता है, तो हमने भी थोड़ा परिवर्तन किया, तो उनके साथ राम जोड़ दिया, तो राम गोविंद स्वामी महाराज हुए। तो स्वयं भी राम के भक्त हैं, गोविंद के भक्त भी है, राम के भी है। राम की कथा सुनाते रहते हैं। वैसे आज की कथा थोड़ी समय में शुरू होने वाली है, जो इसका नागपुर की ओर से प्रसारण हो रहा है। राम गोविंद आई थिंक अनाउंसमेंट भी है, राम गोविंद स्वामी महाराज जी सुनाएंगे राम कथा आज की। उनका आज जन्म दिवस है। या एक गुरु भी है इस नाम के। शिक्षा गुरु है, तो फिर उनकी आज व्यास पूजा भी है। राम गोविंद स्वामी महाराज की उनकी व्यास पूजा की जाए, उनकी जन्म तिथि की जाए। बहुत प्रेमानंद। हरि हरि। हरे कृष्ण प्रभु।